Welcome back, my dear kids. How are you? I hope you all are fine. Today we are going to start another chapter of our mathematics books by Coral Publisher. And the name of our book is Basic Mathematics Class 2. और आज हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे और हमारे चैप्टर का नाम है नंबर्स बियॉन्ड 100. तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर. We know that the greatest one-digit number is 9. When we add 1 to 9, we get 10, which is a two-digit number. 9 में 1 ऐड करते हैं 10 मिलता है और 10 हमारा two-digit number है. It is the smallest two-digit number and 99 is the greatest two-digit number. By adding 1 to 99, we get 99 plus 1, 100. It is the smallest three-digit number and is read as 100. 90 के 9 bundles हैं, 9 लूज है, तो 99 उसमें 1 ऐड किया तो हमें मिला 100. 9 tens plus 1 tens is equal to 100. 10 tens is equal to 100. We also know that in our number system we group by tens. In a two-digit number, the numeral on the left tells the number of tens and the numeral of right tells the number of ones. Ones, tens. Similarly, in the place value chart, 100 is represented as 100 हम कैसे लिखते हैं? Ones, tens, 100. तो 100 पे आ गया 1, tens पे 0 और ones पे भी 0. We can represent this number on an abacus as follow. Abacus पे से कैसे करेंगे? Ones, tens, 100. Ones पे कुछ नहीं है 0, tens पे कुछ नहीं है 0, 100 पे 1. That's mean 100. Also 10 10 के 10 बन गए तो वो 10 tens हो गए is equal to 100. मतलब 10 10 के 10 ब्लॉक्स मिलके क्या बनाते हैं? 100. काउंटिंग इन 100. अब हम काउंटिंग इन 100 पढ़ेंगे. 100 का 1 ब्लॉक है, डेट्स मीन 100, नंबर नेम 100. 100 की 2 ब्लॉक्स हैं, डेट्स मीन 200, TWO2, HUNDRED 100. 100 के 3 ब्लॉक्स हैं, डेट्स मीन 300, 400, 500, 600. देखिए 100 के ब्लॉक्स इंक्रीज होते जा रहे हैं तो 500 से 600 बना, देन 700, 800 एंड 900. राइटिंग 3-digit नंबर्स. अब हम सीखेंगे कैसे लिखते हैं 3-digit नंबर्स. वी नो दैट टू राइट अ 2-digit नंबर वी नीडेड ones and tens places. Similarly, to write a 3-digit number we need ones, tens and 100 places. Some of the 3-digit number are as follow. 100, tens, ones. 101 को कैसे लिखेंगे? Ones, tens, 100. That's mean 101. 100, tens, ones पे 2 हैं तो इसका मतलब क्या है? 102. 100 पे 100 है, tens पे कुछ नहीं है, ones पे 6 है. That's mean 106. Next 125. 125 is equal to 125. Next 159. 159 is equal to 159. 186. 195. Some more 3-digit numbers are as follow. अब हम कुछ और 3-digit numbers को पढ़ेंगे. 209. एबकस पे 100 पे 2, टेंस पे 0, 9 किस पर आया? वंस पे. 299, डेट्स मीन 100 की प्लेस पे 2 है, टेंस की प्लेस पे 9 है और वंस की प्लेस पे भी 9 है. इसी तरह से 254, 329, 352. Now time to do some exercise. Exercise 1. Write the numbers in order from 101 to 200. हमें नंबर्स लिखने हैं 101 से लेके कहाँ तक लिखने हैं? 200 तक. तो चलिए शुरू करते हैं. 101, 102, then 103,
3, 104, 105, 106, then 107, 108, 109 and 110. इसी तरह से आगे शुरू करते हैं 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120. My dear kids, इसी तरह से आप पूरी काउंटिंग लिखेंगे 101 से लेके 200 तक. Now question number 2. Write the numbers from 201 to 250. 201 से लेके 250 तक लिखना है. चलिए शुरू करते हैं. 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210. उसके बाद क्या आता है 211, 212, 213, 214, 15. इसी तरह से आप पूरी काउंटिंग करेंगे. Now next question, write the numbers from 331 to 370. अब आपको 331 से शुरू करना है और कहाँ तक लिखना है 370 तक. लास्ट में 370 आएगा. My dear kids, same pattern you will follow and you have to complete rest of the exercise by yourself. Same question number 4 and question number 5. जैसे काउंटिंग आपने पहले क्वेश्चंस में लिखी थी ऐसे आपको लिखनी है 421 से 480 तक, 521 से 560 तक. क्वेश्चन नंबर 6 and 7 also same, 651 to 700, 751 to 800. And in question number 8 and 9 also same pattern you will follow. My dear kids, all the countings you have to write by yourself. Now we will do question number 10. Read the spike abacus and write the numbers in the boxes. Now question number 10 में आपको क्या करना है, abacus दिया हुआ है, इसे हम spike कहते हैं, उसको देखना है और नंबर्स को लिखना है. तो देखिए वंस की प्लेस पे कितने हैं 3, टेंस की प्लेस पे 5, 100 की प्लेस पे 4. तो क्या नंबर बन गया 453. नेक्स्ट वंस के प्लेस पे 6, टेंस की प्लेस पे 0, 100 की प्लेस पे 5. दैट्स मीन 506. नेक्स्ट वंस की प्लेस पे 4, टेंस की प्लेस पे 5 और 100 की प्लेस पे 6, 654. नेक्स्ट टेंस की वंस की प्लेस पे 0, टेंस की प्लेस पे 5 और 100 की प्लेस पे 3. दैट्स मीन 350. वंस की प्लेस पे है 7, टेंस की प्लेस पर है 6, 100 की प्लेस पर है 7. दैट्स मीन 767. Rest of the questions you have to do by yourself. Now question number 11. Write the numerals for the following. नंबर नेम्स दिए हुए हैं, हमें उसके न्यूमरल्स लिखने हैं. सबसे पहला है 244. कैसे लिखेंगे 244. 808, 808. 487, 487. Then 500. These questions you have to do by yourself. Now question number 12. Write the number names for the following. न्यूमरल्स दिए हुए हैं, आपको नंबर नेम लिखने हैं. सबसे पहला है 371. कैसे लिखेंगे 371. 70 के स्पेलिंग, देन 1 के स्पेलिंग 371. देन 435. 435. THIRTY 30. FIVE 5. Then 616. 616. SIX60EEN 16. Rest of the exercise you have to do by yourself. Now question number 13. Write the numbers of 100, tens, ones for each column. आपको नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. 100 की प्लेस पे जो नंबर है
देन टेंस की प्लेस पे, देन वंस की प्लेस पे। 473, तो 100 पे 4 है, टेंस पर 7 है और वंस पे 3 है। नंबर बी 350, 100 की प्लेस पे 3 है, टेंस की प्लेस पे 5 है और वंस की प्लेस पे 0। 568, 100 की प्लेस पे 5, टेंस की प्लेस पे 6 और वंस की प्लेस पे 8। Rest of the exercise you have to complete by yourself. Now question number 14, draw the beads on the abacus for the following numbers. अब आपको नंबर्स दिए हुए हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग एबेकस पे बीड्स को ड्रॉ करना है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। वंस के प्लेस पे 5 है, आप 5 बीड्स बनाएंगे। टेंस की प्लेस पे 7 है, आप 7 बीड्स बनाएंगे। 4 5 6 7। 100 की प्लेस पे 3 है, आप 3 बनाएंगे। डेट्स मीन 375। वंस के प्लेस पे 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। टेंस की प्लेस पे 6 है, हम 6 बीट्स बनाएंगे। 100 की प्लेस पे 4 है, आप 4 बीट्स बनाएंगे। डेट्स मीन 468। इसी तरह से बाकी के एबेकस के बीट्स, माय डियर किड्स, यू हैव टू ड्रॉ बाय योरसेल्फ। नाउ वी विल लर्न अबाउट बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर। ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, अब हम फिर पढ़ेंगे। वी हैव ऑलरेडी लर्न दिस कंसेप्ट इन आवर प्रीवियस क्लास फॉर 2 डिजिट नंबर्स। 2 डिजिट नंबर्स के लिए हम ये वाला कंसेप्ट पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। नाउ वी विल लर्न द सेम फॉर 3 डिजिट नंबर। अब सेम हम 3 डिजिट नंबर के लिए पढ़ेंगे। लेट अस टेक अ नंबर 639। हमारे पास नंबर है 639। द नंबर जस्ट बिफोर 639 is obtained by subtracting 1 for it. Thus, the number just before 639 minus 1 is equal to 638. 638 is called the predecessor of 639. The number just after 639 is obtained by adding 1 to it. Thus, the number just after 639 plus 1 is equal to 640. 640 is called the successor of 639. The number 639 is between 638 and 640. 638 और 640 के बीच में नंबर आता है 639. Now exercise 2. What comes just before the given number? जो नंबर दिए हुए हैं इनसे जस्ट पहले कौन सा नंबर आता है? 157 से पहले आता है 156, 190 से पहले आता है 189, 210 से पहले क्या आता है 209, 300 से पहले आता है 299, 416 से पहले बताइए कौन सा नंबर आता है? यस, यू आर राइट, 450। 523 से पहले आता है 522. My dear kids, rest of the questions you have to do by yourself. Now move to next question. What comes just after the giving number? जो नंबर दिए हुए हैं जस्ट उसके बाद कौन सा नंबर आएगा? 167 के बाद आता है 168, 199 के बाद आता है 200, 308 के बाद आता है 309, 419 के बाद आता है 420, 449 के बाद आता है 450, 500 के बाद आता है 501. Rest the question you have to do by yourself. Now move to next question. Question number 3. Write the numbers between the given numbers. अब आपको दिए हुए नंबर्स के बीच में जो नंबर्स आते हैं वो बताना है। 187 और 190 के बीच में कौन सा नंबर आता है? तो 187 के बाद 188, 189, देन 190, 215 और 218 के बीच में नंबर आता है 216 एंड 270, 569 और 572 के बीच में नंबर आता है 570 एंड 571. Rest of the exercise you have to complete by yourself. Now question number 4. Fill in the missing number. अब missing numbers को हमें fill करना है.
138, 139, 140, 141, 142, 143, 144. Next 234, 235, 236, 237, 238, 239 and 240. C and D you have to do by yourself. Now question number 5. Write the number which comes after the given number. आपको बताना है दिए हुए नंबर के बाद कौन सा नंबर आता है. 630, 630 के बाद आता है 631, 666, 666 के बाद आता है 667, 209 के बाद आता है 210, 479 के बाद आता है 480. Rest of the exercise you have to do by yourself. Now question number 6. Write the number which comes just before the given number. दिए हुए नंबर से पहले कौन से नंबर्स आते हैं. 341, 340, 517, 560, 625 से पहले 624. Rest of the questions you have to do by yourself. Now question number 7. Write the number which just comes between the given number. Same pattern का क्वेश्चन अभी हमने किया है. तो my dear kids, question number 7 you have to do by yourself. Now we will learn about place value and face value. अब हम place value और face value के बारे में पढ़ेंगे. Let us take the number 82. 82 कैसे लिखते हैं? 8 tens and 2 ones. 80 plus 2. In 82, 8 is at the tens place. The place value of 8 is 80. The face value of 8 is 8. The digit 2 is at ones place. The place value of 2 is 2. The face value of 2 is 2. Now consider the number 729. 100 की place पे 7, tens की place पे 2, नाइन्स की प्लेस पे 1. That's mean 700 plus 20 plus 9. In 729, the digit 7 is at 100 place. The place value of 7 is 700. The face value of 7 is 7. My dear kid, face value हमेशा सेम रहती है चाहे नंबर किसी भी प्लेस पर हो. Next, the digit 2 is at tens place. The place value of 2 is 20. The face value of 2 is 2. The digit 9. 9 digits at ones place. The place value of 9 is 9. The face value of 9 is also 9. Example 1. Find the place value of each digit in 908. That means 908. Ones के place पे 8, tens के place पे 0, 9 के place पे 100. That means 80900. It should be noted the place value of 0 is always 0. Example 2. Write the face value of 4 in the number 647, 482 and 374. In 647 the face value of 4 is 4. देखिए 4 की place value कौन से नंबर में 647 पे 4 रहेगी, चाहे वो ones के place पर हो, चाहे tens के place पे, चाहे 100 के place पे. इन 482 में 4 की वैल्यू फेस वैल्यू क्या रहेगी? 4 रहेगी, चाहे वो 100 के प्लेस पर है, चाहे वो टेंस के प्लेस पर है. इन 374 द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज रिमेन 4. नाउ एक्सरसाइज 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 1. अरेंज द न्यूमरल्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल. न्यूमरल्स को प्लेस वैल्यू टेबल्स में अरेंज करना है. चलिए करते हैं. पहला नंबर है 967. डेट्स मीन 967. 100 की प्लेस पे 900 है, टेंस की प्लेस पे 60 और वंस की प्लेस पे 7. 548. 548. 612. 610 plus 2 12. Number D and E you have to do by yourself.
Question number 2. Write the place value in the box of each color digit in the following numbers. नंबर्स दिए हुए हैं, उसमें कुछ डिजिट क्या है, कलर्ड है, आपको उसकी प्लेस वैल्यू बतानी है. 571, तो 7 कौन सी प्लेस पर है, टेंस की प्लेस पे, तो इसकी प्लेस वैल्यू है 70. 9 वंस की प्लेस पर है, तो इसकी प्लेस वैल्यू 9 है. 3 वंस, टेंस, 100 की प्लेस पर है, डेट्स मीन उसकी प्लेस वैल्यू 300 है. नेक्स्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 7 इन द प्लेस. डिजिट 7 की प्लेस वैल्यू लिखनी है. वंस की प्लेस पर है 7, 100 की प्लेस पर है, देन 700, टेंस की प्लेस पर 7 है, तो 70. DEF you have to do by yourself. Now question number 4. Encircle the correct numeral. नंबर दिए हुए हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में, आपको करेक्ट न्यूमरल पर सर्कल करना है. 724, बताइए कैसे लिखते हैं 724. ये 720 है, 704, 702, 724. 627 कैसे लिखते हैं, 627. 973, 973. 404 ones, that's mean 404. Now next question, question number 5. Write the place value of all the digits given below. जितनी डिजिट्स दी हुई हैं सबकी प्लेस वैल्यू लिखनी है. तो ये है 792. तो वंस की प्लेस पे क्या है, 2 है, 2. टेंस की प्लेस पे 9 है, 9 टेंस, डेट्स मीन 90. 100 की प्लेस पे 7 है, डेट्स मीन 700. नेक्स्ट 536. वंस की प्लेस पे 6 है, टेंस की प्लेस पे 3, 100 की प्लेस पे 5, डेट्स मीन 6, 30, देन 500. Rest of the questions you have to do by yourself. Now expanded form and short form. Let us consider the number 738. We know that 738, 700 plus 3 tens plus 8, 1. 730 plus 8. 700, 3 tens plus 8, 1 is the expanded form in words of 738. 730 plus 8 is the expanded form in figure. Similarly, 738 is the short form of 700 plus 30 plus 8. Now exercise 4. Write the given numbers in their expanded form. Numbers दिए हुए हैं, हमें उनके expanded form में लिखना है. That's mean 300 टेंस की प्लेस पे 0 है, वंस की प्लेस पे 1 है, 301. 866 को हम लिखेंगे 800 प्लस 60 प्लस 6. 934 को हम लिखेंगे 900 प्लस 30 प्लस 4. 777 को हम लिखेंगे 700 प्लस 70 प्लस 7. Rest you have to do by yourself. Now move to next question. Fill in the boxes. 301, that's mean 300 प्लस में वंस की प्लेस पे कुछ नहीं है, 00 प्लस 1. 764, 764. 983, that's mean 900 plus 80 plus 3. 395, 395. Rest you have to do by yourself. Question number 3. Expand the following numbers in figure. अब दिए हुए नंबर को हमें एक्सपेंड करना है किसमें, फिगर्स में. तो चलिए करते हैं. 949, डेट्स मीन 949. 456, डेट्स मीन 400 प्लस 50 प्लस 6. 272, 200 प्लस 70 प्लस 2. सेम इसी पैटर्न से आप बाकी की क्वेश्चंस करेंगे माय डियर किड्स. Now move to next question. Question number 4. 147. तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है. आपको क्या करना है, इन न्यूमरल्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है. 807, 807. 339, that's mean 339.
563, 563, 492, 492, 784, 784. Rest of the exercise, my dear kids, you have to do by yourself. Now we will learn about order relation. We have already learned the method of finding the greater of the two given number having less than 3 digits. Here we shall learn the method of finding the greater of two given 3-digit numbers. We have learned that 9 is the greater than 5 and it is written as 9 greater than 5. We also know that 2 is less than 7 and write it as 2 less than 7. Also 9 is greater than 5 is the same as 5 is less than 9. 9 5 से बड़ा है, ग्रेटर का निशान है. 5 9 से छोटा है तो लेस देन का निशान है. इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न डेट. पिछली क्लास में हमने ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू को पढ़ा था. सेम ये फिर नंबर है वैसे ही, लेकिन तब हमने 2 डिजिट नंबर को पढ़ा था. अब हम 3 डिजिट नंबर्स को पढ़ेंगे. अ नंबर हैविंग मोर डिजिट इज ग्रेटर देन द नंबर हैविंग लेस डिजिट. 17 और 6, तो 17 बड़ा है और 6 छोटा है. If the two given numbers have the same number of digits, then we compare the digit on the extreme left and decide. If the digit on the extreme left are equal, we keep on comparing the next digits on the right and so on. For example, 93, 89 में 93 बड़ा है, 623 और 280 में 623 बड़ा है. 789, 729 में कौन सा नंबर बड़ा है? यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है. तो हम नेक्स्ट नंबर लेंगे 8 और 2. तो 8 बड़ा है तो 789 इज ग्रेटर देन 729. एग्जाम्पल 3, विच इज ग्रेटर? 335 और 79, 492 और 905. Since 335 has 3 digit and 79 has 2 digit, तो obviously 3 digit वाला नंबर बड़ा है. Both the numbers having 3 digit, इसमें दोनों में 3 digit नंबर है. We compare the digit on the extreme left. 492 has 4 on extreme left and 905 has 9 on the extreme left. 4 और 9 में बताइए 9 बड़ा है. इट्स मीन 905 बड़ा है 492 से और 492 छोटा है 905 से. Formation of smallest and greatest number. Suppose we are giving the digit 3, 5 and 7. We have to form smallest and greatest number using these digits only once. अब हम सीखेंगे कि दी हुई डिजिट से ग्रेटेस्ट डिजिट और स्मॉलेस्ट डिजिट कैसे बनाई जाती है. फॉर एग्जाम्पल आपको 3 डिजिट मिली 3, 5, 7. एक एक बार ही डिजिट को यूज करना है और आपको क्या बनाना है? स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट डिजिट. फॉर द स्मॉलेस्ट नंबर वी सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट डिजिट. छोटा नंबर बनाने के लिए सबसे पहले हम छोटा नंबर चुनेंगे जो है 3 एंड राइट इन 100 प्लेस. 100 के प्लेस पे उसे लिखेंगे. फिर हम उससे बड़ा लेंगे 5, उसे टेंस पे लिखेंगे और उसके बाद सबसे बड़ा नंबर हम लेंगे लास्ट में. तो 7 को हम लिखेंगे 1s की प्लेस पे. तो नंबर बन गया 357. इन द सेम मैनर द ग्रेटेस्ट नंबर विच गिवन डिजिट इज 753. और जब हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है सबसे पहले हम सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा. तो ऐसे ही हमने किया तो हमारा डिजिट आई 753. So make the smallest number, arrange the digit in ascending order. To make the greatest number, arrange the digit in descending order. 0 is not written on the extreme left place of a number since it has no meaning at that place. 0 को कभी भी सबसे पहले नहीं लिखेंगे. क्यों? क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती. Now exercise 5. Put greater than, less than or equal to in the boxes to make the sentence true. 890
एंड 521, बताइए कौन सा नंबर बड़ा है? 890 बड़ा है, 768 और 789 दोनों प्लेस पे 7 है। नेक्स्ट नंबर लेंगे 6 और 8, ऑब्वियसली 8 बड़ा है तो 789 है। 442 एंड 444, तो इसमें यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पर भी 4, तो उसके बाद उधर 2 है वंस की प्लेस पे, इधर 4 है। डेट्स मीन 444 इज बिगर देन 442। 881 एंड 657, कौन सा नंबर बड़ा है? 881 बड़ा है। 720 और 929 में कौन सा नंबर बड़ा है? 929 बड़ा है। 253, 327, कौन सा नंबर बड़ा है? नंबर बड़ा है 327। Rest of the exercise, my dear kids, you have to do by yourself. The question number 2, write the greatest number without repeating a digit in the box. इसमें आपको क्या करना है? आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और कोई भी डिजिट को रिपीट नहीं करना। 372 ग्रेटेस्ट बनाने के लिए हम सबसे बड़ा नंबर पहले लिखते हैं, डेट्स मीन 7, देन 3, देन 2, तो नंबर बना 732। नेक्स्ट 981, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 9, देन 8, देन 1, 981। 497, सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, तो नंबर बना 974। Rest of the questions you have to do by yourself. Now move to next question. Question number 3. Write the smallest number using each digit only once in the box. 765. Smallest digit बनानी है, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, नंबर 5, then number 6, then number 7, तो नंबर बना 567। नेक्स्ट 856, तो सबसे पहले नंबर 5, देन नंबर 6, देन नंबर 8। नेक्स्ट 928, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 2, देन 8, देन 9, 289। 764, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 467, तो नंबर बना 467। My dear kids, rest of the questions you have to do by yourself. Now question number 4. The population of two villages A, B is 806 and 898 respectively. Which village has more population? तो कौन से विलेज में ज़्यादा पॉपुलेशन है? तो हम नंबर लिखेंगे 806 और 898। जब हम दोनों नंबर को कंपेयर करेंगे तो कौन सा नंबर बड़ा है? 893, तो इसका मतलब है विलेज बी में पॉपुलेशन ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 5 यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर बाय चेंजिंग द पोजीशंस ऑफ द डिजिट्स इफ नीड अराइजेस इन द फॉलोइंग नंबर। दो नंबर्स दिए हुए हैं, उन नंबर्स को यूज करके आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट डिजिट बनानी है। 965, तो स्मॉलेस्ट में सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट, फिर उससे बड़ी डिजिट, फिर सबसे बड़ी डिजिट, तो नंबर बना 569। ग्रेटेस्ट में सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, तो नंबर बना 965। नंबर बी यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। Question number 7, circle the smallest and underline the largest number. One has been done for you. My dear kids, अब आप सीख चुके हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है और ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या करना है? दिए हुए नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर को सर्कल करना है और लार्जेस्ट नंबर को अंडरलाइन करना है। दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, rearrange these digits to form the largest and smallest number. सेम क्वेश्चन है, डिजिट्स दी हुई है, आपको लार्जेस्ट नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। 526, लार्जेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, और ग्रेटेस्ट बना और स्मॉलेस्ट बनाने के लिए पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। 438, लार्जेस्ट में सबसे बड़ा,
फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और स्मॉलेस्ट बनाने के लिए सबसे छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इसी तरह से बाकी के डिजिट से नंबर आप खुद बनाएंगे। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 9 एंड सर्कल द लार्जेस्ट नंबर। नंबर्स दिए हुए हैं, आपको सर्कल करना है लार्जेस्ट नंबर में। 197, 719, 970 एंड 791। बताइए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर है 917। नेक्स्ट 526, 652, 265 एंड 562। तो सबसे बड़ा नंबर है 652। इन नंबर सी 451, 654, 325 एंड 241। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर है नंबर 654। नेक्स्ट 914, 684, 851, 715। तो सबसे बड़ा नंबर है 914। Rest of the two questions you have to do by yourself. Now move to next question, question number 10 and circle the smallest number. Smallest number को circle करना है। अब हमें करते हैं 300, 310, 400 and 500। तो सबसे छोटा नंबर है 300। Then 319, 193, 391 and 931। तो सबसे छोटा नंबर है 193। Rest of the questions, my dear kids, you have to do by yourself. Now we will learn about ascending, descending order. अब हम ascending और descending order के बारे में पढ़ेंगे। Numbers can be arranged in ascending and descending order. When numbers are written from smallest to greatest, they are in ascending order. जब नंबर छोटे से बड़े में लिखे जाते हैं तो उन्हें असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। When the number are written from greatest to smallest, they are in descending order. और जब नंबर्स को बड़े से लेके छोटे में लिखा जाता है तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाते हैं। चलिए करते हैं एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 6, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब दिए हुए नंबर्स को हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। 740, 989, 435 and 67. Here the smallest number is 67. इन चारों डिजिट में सबसे छोटा नंबर है 67। नेक्स्ट नंबर ग्रेटर देन 67। 67 के बाद कौन सा नंबर बड़ा है? 435। 435 के बाद 740 और लास्ट में 989। The given numbers when written as ascending order 67, 437, 740 and 981। तो आपने देखा छोटे से बड़े में लिखा गया तो इसीलिए इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया। नाउ एक्सरसाइज 6, रीराइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब दिए हुए नंबर को हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर है 132। उसके बाद 132 से बड़ा है 289, देन 317, देन 475 और लास्ट में 728। तो देखा हमने दिए हुए नंबर को किस में लिखा? असेंडिंग ऑर्डर में। नाउ नेक्स्ट नंबर बी। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 279। 279 से बड़ा है 662, then 688, then 775। उसके बाद सबसे बड़ा नंबर है 945। तो ये नंबर हमने किस में लिखे? असेंडिंग ऑर्डर में। सो माय डियर किड्स, नंबर सी एंड डी यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, रीराइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब दिए हुए नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। इसके लिए हम सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे। तो दी हुई डिजिट में सबसे बड़ा नंबर है 734। 734 से छोटा नंबर है 483। 483 से छोटा नंबर बताइए कौन सा है? 223, देन 206 और लास्ट में है 109। तो ये नंबर हमने बड़े से लेके छोटे में लिखा, डेट्स मीन दे आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर।
नंबर 2 देखते हैं, सबसे बड़ा नंबर है 935, देन 752, उसके बाद 612, देन 612 के बाद है 326 और सबसे लास्ट में सबसे छोटा नंबर है 278. So my dear kids, rest of the exercise you have to do by yourself. Now question number 3, write whether the following numbers are arranged in descending or ascending order. अब आपको बताना है कि जो दिए हुए नंबर हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में. चलिए देखते हैं. 156, 560, 637, 767 और 77. तो इसमें नंबर छोटे से लेके बड़े में जा रहे हैं. डेट्स मीन ये नंबर असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है. नेक्स्ट 983, 981, 538, 373 एंड 106. इसमें नंबर बड़े से छोटे में लिखा गया है. डेट्स मीन ये नंबर किस में है? डिसेंडिंग ऑर्डर में है. Number C and D, my dear kids, you have to do by yourself. My dear kids, thanks for watching this video. Take care. Bye-bye.